اس کو 27 بار پڑھے گا، ایک گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، پھر جو مانگ تجھے اپنے رب خزانوں سے عطا کرے گا۔ اور آپ کو علم ہے یہ وظیفہ بالکل آسان ہے، اور جو بندہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، زندگی کا معمول بنا لے، اس کو اللہ رضا بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، مشکلیں بھی حل ہوتی ہیں، ناکامیاں بھی دور ہوتی ہیں، مسائل بھی حل ہوتے ہیں، رزق، وسعت، عزت، برکت، راحت، رحمت، سکون اور چین کے اللہ دروازے بھی کھولتا ہے، اور اس کو غیبی نظام اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو بندہ 27 بار گڑ گڑا کے یہ پڑھ لے، بیت الخلا کی دعا، بیت الخلا کی دعا۔ آپ کبھی جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ بولیں، جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ بیٹھے ہیں، کھڑے کیوں ہیں؟ جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں بیت الخلا کی دعا کا اہتمام کریں۔ یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، نیک جن دوست بن جاتے ہیں، بدکار جن معافیاں مانگتے ہیں۔ بیت الخلا کی دعا۔ اور جب سے اٹیچ بات آئے ہیں، یاد رکھنا، اور میری باتوں کی اگر سائنس چاہتے ہو، میں ایک سوال کر رہا ہوں اور آپ کو ایک درخواست کروں، اگر میری باتوں کی سائنس چاہتے ہو کہ کیا میری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ میری باتیں ہیں یا انگریز بھی ان باتوں کو مانتے ہیں؟ کیونکہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ انگریز کی بات اگر ہے تو ہماری بات طاقتور ہو جاتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے۔ تو پھر ہماری ایک لائبریری ہے، اس کا نام ہے جادوئی لائبریری، اپری کی ویب سائٹ پہ پڑی ہے، اس کو اٹھائیں، جس میں سینکڑوں کتابیں میں نے انگریزوں کی جمع کی ہیں، صرف انگریزوں کی کتابیں جمع کی ہیں، سینکڑوں، اور ہر کتاب کا موضوع یہی ہے کہ انگریزوں پہ جنات ہوئے، ان پہ جادو ہوئے، ان پہ نظر بد ہوئی، ان کے ساتھ کوئی انہونا واقعہ ہوا، ان کے ساتھ کوئی پراسرار زندگی اور دنیا ہوئی، اور انگریز نے اس کے ساتھ کیا کیا، انگریز نے کیا کیا، یہ انگریز کا واقعہ انگریز کی زبانی خود سنیں۔ اب میں اس کی ایک دعا کی تاثیر بتا رہا ہوں، بیت الخلا کی، بیت الخلا کی دعا کی تاثیر بتا رہا ہوں۔ دلی میں ایک عمرہ کا علاقہ تھا کہ جہاں سارے بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں تھیں، مالداروں کا علاقہ تھا، مالداروں کا علاقہ۔ میں نے اس کا ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، اسی کا دوسرا واقعہ سنا رہا ہوں، پہلے بھی ایک سنایا تھا۔ آگ لگ گئی، بنگلے اور کوٹھی میں آگ لگ گئی، اور آگ اتنی بھڑکی کہ آگ اس بنگلے، انگریز کے بنگلے کی طرف آ رہی تھی۔ مسلمان ملازم تھا، بھاگا بھاگا آیا اور آ کے کہنے لگا کہ صاحب جی آگ آپ کی طرف آ رہی ہے اور آپ کو جلا دے گی، ہر چیز کچھ انتظام کریں کچھ۔ وہ اپنے دفتر میں لکھنے میں کاروباری آدمی مصروف تھا، اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ مسلمان نے سنا، ملازم نے سمجھا کہ شاید انہوں نے میری بات نہیں سنی، پھر کہا کہ مہربانی کریں آگ کا کچھ انتظام کریں۔ اس نے پھر توجہ نہیں کی۔ جب اس نے تیسری دفعہ کہا تو آپ ذرا جواب سنیے گا انگریز کا، غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ انگریز نے بڑی لاپرواہی سے ایک لفظ کہا، میرے بنگلے میں آگ نہیں آ سکتی، میرے بنگلے پہ آگ نہیں لگ سکتی۔ کیوں؟ میں نے مسلمانوں کی طرز پہ اپنے مال کی پوری زکات دی ہے، میں نے مسلمانوں کی طرز پہ اپنے مال کی پوری زکات دی ہے، لہذا میرے مال کو آگ نہیں کھا سکتی۔ اور مسلمان جو اس کا ملازم تھا بھاگا پھر گیا تو جا کے کیا دیکھا، آگ بنگلے کے قریب آئی پر وہاں آ کے بجھ گئی، بنگلے کے ایک تنکے کو نہیں جلا سکی۔ اس میں ایک دوسرا واقعہ بھی سن لیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایک مالدار تھا، لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ رات کو سردی تھی، چور آیا، اس نے نقب لگائی، اور وہاں جو دیوار کے اندر ایک الماری تھی جس پہ صرف آنے ڈیڑھ آنے کا تالا پڑا ہوا تھا،
उसने आज के उसको तोड़ना शुरू किया। साहिब खाना जो मालदार थे और जिनके पास लोग अमानतें रखवाते थे, वो सो रहे थे। उनकी आंख खुल गई ठुक ठुक की वजह से। उन्होंने देखा तो चोर वो ताला जो आने डेढ़ाने वाला ताला है वो तोड़ रहा और उससे टूट नहीं रहा। रजाई से मुंह निकाल के ना एक लफ्ज कहा, मियां हमने इस सब के माल की ज़कात दी हुई है, तुझसे कभी ना टूटेगा। फिर रजाई में सो गए। चोर भी कोई बेहया था, वो फिर तोड़ता रहा। सारी रात सर्दियों की गुजर गई, वो छोटा सा ताला ना तोड़ सका। सुबह उठ के पांव पड़ गया और पांव पड़ने के बाद पूछा कि आपके इसकी वजह? कहा मैंने सारे के सारे माल की ज़कात दी है। और यही कि यही हालात जिम्मेदार के हैं। अगर जिम्मेदार तोल के पूरा ओशर दे दे, मैं, मेरा बाप दादा परदादा हम जिम्मेदार हैं, ताजर भी हैं और हमारे खानदान में अल्लाह अल्लाह भी है, अगर ये कोई बंदा दे दे, मैं कहता हूं उसकी जमीनें, उसका माल कभी तकसीम नहीं होगा। वरना साइंस कहती है और इकोनॉमिक्स कहती है और तजर्बात कहते हैं, जमीन दूसरे खानदान के बाद नया मालिक मांगती है और जमीनें और माल टुकड़े टुकड़े होके हिस्सों के नाम पे बिक जाते हैं। ये छोटा सा अमल है, ये छोटा सा अमल है, ये छोटा सा अमल है। एक अमल बताऊं मैं आपको कबूलियत का। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात। बस, या यहां तक, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। जो बंदा कितनी बार पढ़ेगा? और सबक याद है सारा, 27 बार पढ़ेगा, फिर क्या मिलेगा? जो मांगोगे मिलेगा। आप बोलो, जो बंदा इसको 27 बार पढ़ेगा, एक गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, फिर जो मांग तुझे अपने रब खजानों से अता करेगा। ऐसे है, मिलता है, मिलता है, मिलता है। आजमाने वाले कहते हैं मिलता है। और आपको इल्म है ये वजीफा बिल्कुल आसान है। और जो बंदा इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, जिंदगी का मामूल बना ले, उसको अल्लाह रजा भी देता है, बरकत भी देता है, मुश्किलें भी हल होती हैं, नाकामियां भी दूर होती हैं, मसाइल भी हल होते हैं। रिस्क, वुसअत, इज्जत, बरकत, राहत, रहमत, सुकून और चैन के अल्लाह दरवाजे भी खोलता है और उसको गैबी निजाम उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। जो बंदा 27 बार गिड़गिड़ा के ये पढ़ ले, अल्लाह से जो मांगे अल्लाह उसको देता है। और आपको इल्म है कि सफर के महीने में मैंने सूरत कुरैश हर साल देता हूं। सफर के पिछले जुमेरात भी मैंने ऐलान किया, जो बंदा सफर के महीने में 40,000 दफा या 70,000 दफा या 1.25 लाख सूरत कुरैश पढ़ ले, उस पे क्या मिलता है? क्या मुरादें पूरी होती हैं? क्या नाकामियां खत्म होती हैं? क्या मसाइल हल होते हैं? क्या मुश्किलें दूर होती हैं? और कितने रिस्क, वुसअत, बरकत के दरवाजे, अता शफकत के दरवाजे, इनायत के दरवाजे खुलते हैं। किसके ऊपर? सिर्फ ये सूरत कुरैश सफर के महीने, सफर के महीने में। इसका हदिया जरूर देना। ये 11-12 रबीउल अव्वल में आके अपने हाथों से लंगर बांटना। सफर के महीने में बहुत कमाल चीज है। सफर के महीने में जो शख्स सफर के महीने में सूरत कुरैश पढ़े, और हर साल हमारे ये तजर्बात में ये चीज मौजूद है, जो बंदा भी सफर के महीने में सूरत कुरैश पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी गैबी निजाम से मदद फरमाते हैं। सफर के महीने में सूरत कुरैश। मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा, मैं चाहता हूं बावजू रहूं, मुझे कोई टोटका बताया। मैंने उसको एक टोटका बताया था, आपको भी बता दूं। उसको एक टोटका बताया, आपको भी बता दो। सौंफ, पुदीना और अजवाइन। सौंफ, पुदीना खुश्क और अजवाइन। पुदीना को पानी में डालेंगे, ऊपर तैर जाएगा, पत्थर नीचे आ जाएंगे, धूप में खुश्क कर लेंगे, वरना इसमें से ऐसे ही धूप खुश्क कर लेंगे धूप में। सौंफ 1 छटांक, पुदीना 1 छटांक या 50 ग्राम सौंफ बारीक पीस लें, चम्मच सुबह दोपहर शाम खाएं। लेकिन एक और चीज भी है कि हर वक्त खाना और खाना ही खाना और खाते ही रहना, यह जिंदगी का खतरनाक फैसला है। यह जिंदगी का, दुनिया में
जो अमवात हुई हैं सारी भूखों से कम हुई हैं, खाने से ज्यादा हुई हैं। भूखों से कम हुई हैं, खाने से ज्यादा हुई। दुनिया में जितनी भी अमवात हैं, खाना और खूब खाना, यानी हमने खाने का निजाम बनाया हुआ है। सुबह खाना है, फिर दोपहर खाना है, फिर असर के बाद कोई चाय हल्का फुल्का, फिर इशा के बाद। हालांकि खाने का निजाम बताऊं, आज मैं आपको एक चीज बताऊं। किसी ने पूछा तेज भूख किसे कहते हैं? कहते हैं ना कि जब तेज भूख लगे उस वक्त खाना चाहिए। आज मैं आपको तेज भूख का एक थर्मामीटर बताऊं। बोले बताऊं ना बताऊं? आप सुनना ही नहीं चाहते। कोई शोर शराबा करो, कोई करो के बता। तेज भूख का थर्मामीटर यही है कि जिस वक्त रोजे में जितनी भूख लगी हुई होती है, मुझे उस भूख का जरा हाल बताएं। आज भूख लगी थी रोजेदारों को, लगी होगी, क्यों ना लगी हो। हालांकि बैठे रहे, मुशक्कत से भूख ज्यादा लगती है, बैठे रहे, लेकिन भूख लगी। रोजेदार को रोजे के वक्त जितनी तेज भूख लगती है, इतनी तेज भूख पे खाना कभी बीमारी नहीं बनाएगा। और ये मैंने आपको चूरन बता दिया, ये बहुत जबरदस्त है। सौंफ, पुदीना और देसी अजवाइन, बहुत कमाल चूरन है। गैस, बादी, तबखीर, मोटापा, कब्ज, पेट का बढ़ना और कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड और पता नहीं क्या क्या चीजों के लिए बहुत बाकमाल चीज है, बहुत लाजवाब चीज है। तो सफर के महीने में सूरत कुरैश का एहतमाम करें। और जो हजरात हिज़्बुल बहर का चिल्ला कर रहे हैं उनके बारे में बता दूं कि वह सूरत कुरैश पढ़ रहे थे, सूरत कुरैश पढ़ रहे थे और हिज़्बुल बहर का चिल्ला कर रहे थे। वो हजरात अगर सूरत कुरैश छोड़ चुके हैं 3 दिनों के लिए और 3 दिन के बाद फिर सूरत कुरैश शुरू करेंगे, इंशाल्लाह उनकी तासीर, उनकी ताकत, उनका कमाल बढ़ जाएगा। और हिज़्बुल बहर की जो दुआ है ना, अगर आप कहें तो हिज़्बुल बहर की दुआ एतवार कश्फुल महजूब के बाद रखती है। अलविदाई दुआ, इख्तितामी दुआ, एतवार को दम होगा फजर के बाद, याद है सूरत कुरैश पढ़ी और आपके भी काम बन गए। और उस दम के बाद अलविदाई दुआ, कश्फुल महजूब, सूरत कुरैश पढ़ी आपके काम के बाद उसकी इख्तितामी और अलविदाई दुआ हो जाए तो बहुत तासीर मिलेगी, बहुत कमाल मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगी और बहुत बरकत मिलेगी। ये बताएं जो सफर के महीने में सूरत कुरैश किसी ने पढ़ी और उसको नफा मिला हो, फायदा मिला हो, कमाल मिला हो, सिर्फ 2-3 बंदे हाथ खड़ा करके मुझे बता दें। एक आप बताएंगे और एक आप, और आप बैठे बैठे बता दें सिर्फ क्या मिला बैठे बैठे। कहने लगे मेरे मसाइल थे वो खत्म हुए, मुझे मुलाजमत मिल गई है। सूरत कुरैश मैंने सफर के महीने में पढ़ी थी। हाँ, आपको? कहने लगे पिछले साल मैंने 1.25 लाख पढ़ी थी, अब भी मैंने शुरू की हुई है। जो काम चाहता हूं, जो काम करता हूं, हो जाता है, हो जाता है। कर लें। एक बात बताऊं, आज तो मां बाप भी वो नहीं है जो मुस्तकबिल बनाए। मां समझती है, बाप समझते हैं आला तालीम डिग्री दिलाएंगे मुस्तकबिल बन जाएगा, और आला तालीम डिग्री मिली मुस्तकबिल न बना, नौकरियां न मिली। बादशाह कहां से नौकरियां लाए? इसमें बादशाह का कसूर तो नहीं है। मेरे वतन का बादशाह कहां से नौकरियां लाए, कहां से निजाम बनाए? उसका वाहिद हल यह है कि सब कुछ किया, असल में अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम नहीं किया। जब अल्लाह से ताल्लुक कायम करते हैं फिर सारे मसले हल हो जाते हैं, फिर सारी आसानियां पैदा हो जाती हैं, सब मुश्किलें, सब नाकामियां खत्म हो जाती हैं। सूरत कुरैश के ऊपर अगर आप तवज्जो दें, सूरत कुरैश पे ध्यान दें, और बाकी जो मैंने वज़ाइफ बताए हैं इन सब की आपको इजाजत है, और बाकी जितने वज़ाइफ कर रहे हैं इंशाल्लाह उन सब की आपको इजाजत है। आप करें, अल्लाह के नाम में ताकत है, यकीन से करें। अगर नहीं हो रहा, मेरे करने में कमी, मेरे मांगने में कमी, मेरे लेने में कमी, उस शहनशाह के देने में कमी नहीं है, नहीं है और नहीं है। मेरे मांगने में कमी है, मेरी तलब में कमी है, मेरी तड़प में कमी है। और तस्बीह खाने में कितना खुशकिस्मत इंसान है जो सारा हफ्ता लोगों को तैयार करे और तस्बीह खाने ले आए। इसलिए नहीं कि तस्बीह खाने भरना है और चंदा लेना है,
इसलिए कि किसी को खैर की तरफ लगा देना, किसी की मुश्किल टल जाए मेरी वजह से, किसी की परेशानी दूर हो जाए मेरी वजह से। और हर बंदे को अपनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा रहा, इसके मोबाइल पे क्या पता कोई ऐसी पोस्ट आ जाए, इसका मसला हल, इसकी मुश्किल दूर, इसकी नाकामी खत्म हो जाए और इसके परेशानियां हल हो जाए। इससे बड़ा कोई खुशकिस्मत नहीं जो ये अज़्म कर ले कि मैं हर वक्त लोगों के मोबाइल पे अपकरी का यूट्यूब, और जब भी आऊंगा तस्बीह खाने अकेला नहीं आऊंगा। सखी कभी अकेला नहीं चलता, सखी हमेशा सबको लेके चलता है। हर रंग, हर नस्ल, हर मसलक, हर फिरका, हर जुबान, हर इलाका, सब मेरे हैं। मैं कितना खुशकिस्मत हूं, इस वक्त तस्बीह खाने में हर रंग, हर नस्ल, हर फिरका, हर जुबान बैठे हैं और आपस में मोहब्बत, आपस में प्यार, आपस में उल्फत और एक दूसरे के साथ दरगुजर। यह जिंदगी का सफर अल्लाह को पसंदीदा है। तो फिर आप सखी बनेंगे ना? क्या ख्याल है, सखी बनेंगे या नहीं बनेंगे? सखी बनेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से एक दुआ भी करते रहे कि अल्लाह हमें लकड़ी की रोटी ना खिला, हाथों की रोटी खिला। ये पत्नी बेलना चकला कहां से आ गया? टेढ़ी मेढ़ी रोटी खा लो पर हाथों से बनी हुई रोटी खाओ, जो दोनों हाथों के मिलने से नूर मिलता है और बरकत मिलती है। इस पे मैं कभी बात करूं तो आप हैरान हो जाओगे कि दोनों हाथों के मिलने से जो रोटी फैलती है और दोनों हाथों के मिलने से जो रोटी में नूर और बरकत और रहमत और शिफा आती है और राहतें आती हैं, और उसकी वजह से जिंदगी में तमंगरियां और माल और नस्लों में, वो आप फिर क्या बताऊं, आप सोच नहीं सकते कि क्या बताऊं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप हजरात सारे वजीफे आपने किए, आपने कभी मेरे चंदे का ख्याल किया? आमीम लायुन सारून मेरा चंदा है, 313 बार मेरा, मेरी नस्लों का इस सारे निजाम का तस्वर करके हिफाजत, किफायत, किफालत, बरकत, रहमत, आफियत का, या हाफिज या सलाम, जानी सारों का अमल और लक़द जाकुम रसूलुन का अमल का मुस्तकिल मैंने आपको दिया हुआ है, मुस्तकिल दिया हुआ है। और ये इसमें आजम का दम इसी एतवार को होगा, इसी एतवार को इसमें आजम का दम होगा, हल्का कशफुल महजूब होगा। और दम का डब्बा पहले ले लिया करें, उसमें तावीज होते हैं, उसमें नक्श होते हैं, उसमें अमल होते हैं, उसमें चीजें होती हैं। बड़े एहतमाम से और बहुत तवज्जो और अदब से उन तावीजों को आपने तवज्जो से लेना है, तवज्जो से लेना है। अपकरी की तरफ से 11-12 रबीउल अव्वल को इंशाल्लाह लंगर आम होगा गलियों में, आप भी लाके अपने हाथों से तकसीम करेंगे। और आपको इल्म है कि मैंने आपको लंगर की इजाजत कब दी थी? मैंने 1937 साल के बाद 16 दिसंबर 2021 को, 37 साल के बाद, मेरे रूहानी सफर को 37 साल उस दिन हो गए थे। 37 साल के बाद मैंने लंगर लाने की इजाजत दी थी और यह कहा था कि जो लाना चाहे अपने हाथों से बांटे। इससे पहले तस्बीह खाने में कोई लंगर लाने की इजाजत नहीं थी, आप गवाह हैं, सच है ये। 16 दिसंबर बरोज जुमरात 2021, 37 साल के बाद मैंने लंगर लाने की इजाजत दी थी। और शब बारात में 11-12 रमजान की दरमियानी रात में, 27वीं रात में, 9-10 मुहर्रम में, इसमें आजम के दम में, 1.25 करोड़ सूरत इखलास की 11 जुमेरातों में, 11-12 रबीउल अव्वल में और 1.25 अरब दरूद पाक में लंगर और सबील लगाने की इजाजत है। और इसके लिए टेलीनार के नंबर पर राब्ता करें। आप ना बिस्किट और टाफियां खवातीन लाया करें, छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनकी हौसला अफजाई करें, यही बच्चे आने वाला मुस्तकबिल है हमारा, छोटे छोटे बच्चे। मैं बाज मस्जिदों में जाता हूं, बाबे क्या करते हैं, बच्चों को डांट रहे होते हैं, निकलो यहां से और छोड़ो यहां से। ओहो, फिर वही जब बड़े होते हैं फिर बाबे कहते हैं आ जाओ। उन्होंने कहा बाबा जी आपने हमें निकाला था, आपने तो निकाला था हमें मस्जिदों से। हाँ, वो छोटा बच्चा जो पेशाब को कंट्रोल मस्जिद भर दे, वो छोटा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे मस्जिदों में आते हैं, उनको डांटते हैं, उनको निकालते हैं और मेरे अंदर ऐसे तकलीफ होती है। ये बच्चे नहीं हैं, ये हमारी नस्लें हैं, ये आने वाला मुस्तकबिल और फ्यूचर है। तो जब यहां आए खवातीन तो छोटे छोटे बच्चों के लिए टाफियां बिस्किट लाया करें और उनमें तकसीम किया करें, उससे बच्चों की दिलजोई होगी और बच्चे मुतमईन होंगे। फिर यही बच्चे माँ बाप के लिए मोहब्बतों और फरमा बरदारियों का जरिया बनेंगे। आए मगरिब से पहले, दुआ से पहले ना जाएं, कोई मजबूरन जुमेरात रह जाए तो बाद में पूरी करें। फकीर दुर्वेश बन के आए, इंशाल्लाह झोलियां भर के जाएं। 21 जुमेरातों की मन्नत माने, फिर जिंदगी देखें। और जो नए जोड़े हैं
شادی شدہ ان کو 21 جمعراتوں کی منت ضرور منوائیں، 21 جمعراتوں کی منت ضرور ان سے کہیں۔ اگر کوئی سویا ہوا نصیب جگانا چاہتا ہے نا، سویا ہوا نصیب جگانا چاہتا ہے تو تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے عبادت اور خدمت کے لیے آئے اور اپنی زندگی وقف کرے، یا پھر 3 دن کے لیے آئے، یہاں 3 دن ظہر سے، جمعرات کی ظہر سے لے کر جمعرات کی عصر سے لے کر اتوار کی ظہر تک 3 دن یہاں گزارے۔ بہت طاقتور عمل ہوتے ہیں، بہت طاقتور عمل ہوتے ہیں۔ اگر سویا ہوا نصیب جگانا ہے تو یہاں اپنی زندگیاں وقف کرنے کے فیصلے کریں، یا چند دن، چند ہفتے، چند مہینے خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے گزاریں، یا پھر 3 دن یہاں لگائیں، عصر کی، جمعرات کی عصر سے لے کر اتوار کی ظہر تک۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقت۔ اب ہم درود شفا پھر پڑھ لیں، اپنی بیماریوں کا، تکلیفوں کا، مشکلوں کا، لا علاج بیماریوں، جادو جنات، اثرات کا، ناکامیوں کا تصور کر کے ہم پھر درود شفا پڑھ لیں اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ یہ درود اور اپنے نفلی عبادات، کوئی صدقہ، کوئی خیرات پوری امت کو ہدیہ کر دیں، اپنے پیاروں کو ہدیہ کر دیں، اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں، انہیں ہدیہ دیا کریں، قبرستانوں میں جایا کریں۔ پھول چیزیں لینا ضروری نہیں، اندر کے پھول لینا ضروری ہے، اور قبر